अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ORCC सेशन में जो चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ फेडरलिज्म। पॉलिटिकल साइंस में ऑलरेडी हमने इससे पहले एक चैप्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड दैट चैप्टर वाज पावर शेयरिंग। और आज जिस चैप्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ it is federalism. So without wasting your time, let us move on to the expected questions. As you can see here, these are the different expected questions जो इस वाले चैप्टर में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है as far as your 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो यहाँ पे आप देखिए पहला क्वेश्चन जो है as you can see here, फर्स्ट क्वेश्चन जो है that is what is federalism. Okay, I will change the color. Yes, now see, it is number one question is what is federalism, and then write key features of federalism. Second question is what is the importance or need for decentralization. Explain the provisions that have been made towards decentralization in India after the constitutional amendments in 1992. Then short answer type question में एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इस वाले चैप्टर में? It is what is the main difference between federal form of government and the unitary form of government. Then is distinguished between coming together federation and holding together federation. Important question है ये. In fact, both these questions are important as far as this chapter federalism is concerned. Then very short answer type questions में important terms and questions. Jurisdiction क्या होता है? Second is coalition government क्या होती है? Concurrent subjects क्या होते हैं या concurrent list क्या होता है? Then is residuary subjects क्या होते हैं? Then is besides Hindi there are dash on scheduled languages in India. Mention some of the subjects of the union list. Union list में क्या क्या subjects आता है वो आपने mention करना है. What is decentralization? Decentralization क्या होती है? And what is local government popularly known as? Local rural government को popularly क्या बोला जाता है? Then what is gram panchayat? Then we are having who is the political head of the municipal corporation, and then we are having last question is what are union territories. Is that clear? So these are the different expected questions जो मैं इस ORCC सेशन में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं. तो without wasting your time, let's move on to the first question. नंबर 1 जो मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की थी उसमें पहला ही क्वेश्चन हमने रखा था व्हाट इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं, फेडरलिज्म एज यू कैन सी हियर इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में वेयर देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. या हम बोलेंगे इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. या हम बोल सकते हैं कि इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट where there is division of power between the central government and it is various constituent units. तो ये होता है फेडरलिज्म. ठीक है. एंड फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं, फेडरलिज्म बना यहां पे आप देखोगे फेडरलिज्म हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, हमने पहले ही आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि फेडरलिज्म जो है यहां पे डिवीजन ऑफ पावर होता है between central government and it is various constituent units. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में there are 2 levels of government. And what are those 2 levels of government? Number 1 you can see here is the government that is for the entire country, and government for the entire country is known as the union government or we can call it as the central government. Then we are having and ये जो central government होती हैं ये हैंडल करती है या we can say it is responsible for subjects of common national interest.
Then we are having this government at the state level, या government at the state level, या government जो provinces में पाई जाती हैं, and state government या provinces में जो government पाई जाती है, ये वहां पे day to day administration को run करती है. So these are the levels of government जब हम federalism की बात करते हैं. One is central level government, or we can call it as the union level government, and second is the state level government. Then both these levels of government जो है ना, they enjoy their powers independent of each other. कि federalism में whether we talk about the central government या हम state government की बात करेंगे, तो दोनों governments की जो powers है, they have been prescribed by the Constitution of India. Constitution ने categorically powers prescribe की है state government की और central government की. So they are independent, they are enjoying independent powers. So this is federalism and the levels of government, two levels of government as far as federalism is concerned. Then we have another important topic of the chapter is, हर साल ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है कि आपको डिफरेंसेस देनी है और किसके बीच में, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटरी सिस्टम क्या होता है और इसके बाद में फेडरल सिस्टम क्या होता है. आर यू गेटिंग मी? एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या गिव द डिफरेंसेस बिटवीन द यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो क्या डिफरेंसेस हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पहला पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे. तो जब हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, वहां पे खाली एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, या अगर वहां पे सब यूनिट्स होंगे, वो सब यूनिट जो है ना, दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है ना? देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एज फार एज द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कंसर्न. और अगर जो वहां पे सब यूनिट्स होते हैं ना, सब यूनिट जो है दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. मगर फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं, फेडरलिज्म में आपने इससे पहले ही पढ़ा, अभी फेडरलिज्म में डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. तो दिस इज ये पहली डिफरेंस आप लिखोगे यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. इज दैट क्लियर? आई होप कि पहली वाली डिफरेंस आपको क्लियर हुई होगी. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है और एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है. सेकंड पॉइंट जो आप इसमें लिखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट. की यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स. किसको ऑर्डर्स पास कर सकता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एंड इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट में. आप बोलोगे सर ये तो कंट्राडिक्ट हो रहा है, आपने भी बोला कि यूनिटरी फॉर्म में एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है. हमने यहां पे लिखा कि अगर वहां पे सब यूनिट्स होंगे भी, अगर वहां पे लोकल लेवल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, मगर दैट प्रोविंशियल एंड दैट लोकल लेवल गवर्नमेंट जो है ना, दैट विल बी सबऑर्डिनेट या ना टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स पास ऑन कर सकता है. देन यहां पे सेकेंड पॉइंट ऑफ फेडरलिज्म में याद रखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट और डू समथिंग और टेक एनी एक्शन. कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और या स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में इंटरवेन नहीं कर सकता है. तो ये दो डिफरेंसेस आपने याद रखे यूनिटरी में और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. अब आप बोलोगे सर अगर ये तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, हमने तो 2 ही पॉइंट्स यहां पे लिखे, तो एग्जामिनर खाली हमें 2 मार्क्स यहां पे देगा. तो तीसरा पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो. वहां पे आपने एग्जांपल लिखनी होगी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां पे पाई जाती है और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां पे पाई जाती है. पहले हम यूनिटरी में देखेंगे. यूनिटरी जो है ना, ये यूके में पाई जाती है, उसके बाद में ये जो है ये चाइना में पाई जाती हैं, एंड उसके बाद में देन वी आर हैविंग जापान में पाई जाती है. और आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, इट इज फाउंड इन द कंट्रीज ऑफ यूके, देन चाइना एंड जापान. तो ये थर्ड पॉइंट आप इसमें ऐड करोगे. और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप थर्ड पॉइंट यहां पे ऐड करोगे कि ये वाली गवर्नमेंट जो है ना, ये यूएसए में पाई जाती है, उसके बाद में ये इंडिया में पाई जाते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसके बाद में ये वाली गवर्नमेंट जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है. ठीक है ना? तो ये तीसरा पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो. तो अगर ये 3 मार्क्स का आएगा तो तीसरा पॉइंट ये वाला आप इसमें ऐड करोगे. तो ये हैं डिफरेंसेस बिटवीन द
फेडरल एंड द यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो आप एग्जाम में ऐसे ही आप आंसर लिखोगे, ब्लड पॉइंट्स में इसको आप ब्रेक करोगे, 2 कॉलम्स आप बनाओगे और उसके बाद में फिर आप इस वाले कॉलम में यूनिटरी में आप 3 पॉइंट्स लिखोगे और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी आप 3 पॉइंट्स आप इसमें ऐड करोगे. सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन द यूनिटरी एंड द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. देन वी आर हैविंग स्लाइड जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ यहां पे स्मार्ट बोर्ड पे डिस्प्ले की. तो वहां पे एक क्वेश्चन हमने लिखा था व्हाट इज फेडरलिज्म और साथ ही साथ दिया था द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म के की फीचर्स आपने लिखने हैं, ठीक है ना. आई होप कि फेडरलिज्म आपका क्लियर हुआ होगा, जिसमें आपने याद रखा कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. तो इसकी फीचर्स क्या है? पहला फीचर है इसका 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि फेडरलिज्म में या तो 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है. जब हम फेडरलिज्म की बात करेंगे, ये इसका पहला फीचर है. एज यू कैन सी हियर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर फाउंड इन फेडरलिज्म. सो दिस इज वन फीचर, वेरी सिंपल. सेकंड है सेम सिटीजन्स सेपरेट जुरिस्डिक्शन. तो यहां पे इस पॉइंट को थोड़ा हम इलैबोरेट करेंगे कि वो होता क्या है. सेम सिटीजन्स सेपरेट जुरिस्डिक्शन, कि सिटीजन सेम है मगर जुरिस्डिक्शन सेपरेट है. उसका मतलब यह है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, दे गवर्न द सेम सिटीजन्स. कि डिफरेंट, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास लोकल लेवल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है. सिटीजन्स आर सेम मगर सिटीजन जो है ना, दे आर सेम but the different levels of government जो है ना, they govern the same citizens. As you can see here, where each level has its own jurisdiction. हर एक लेवल की अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है, हर एक लेवल की अपनी अपनी अथॉरिटी है, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अपने अपने पावर्स है. चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, स्टेट लेवल गवर्नमेंट की बात करेंगे, लोकल लेवल गवर्नमेंट की हम बात करेंगे. तो वी आर द सिटीजन्स ऑफ अ सेम कंट्री. हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, वी बिलोंग टू इंडिया, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, लोकल लेवल गवर्नमेंट भी हमें गवर्न करती है. तो सिटीजन जो आर सेम बट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो डिफरेंट है, मगर वो जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है दे गवर्न द सेम सिटीजन्स इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन. आप ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, इनका अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, इनके अलग अलग पावर्स है. क्या इनके अलग अलग पावर्स है कि लॉ बनाने के लिए अलग अलग पावर इनको दिया गया है. हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग पावर्स हैं with regard to the framing laws. Then we are having taxation. ये different taxes collect करता है. स्टेट गवर्नमेंट की अलग टैक्सेस कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्सेस कलेक्ट करती है. उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी इनके क्या है, अलग है. तो वही हो गया सेम सिटीजन सेपरेट जुरिस्डिक्शन, कि इसका सिटीजन सेम है मगर जुरिस्डिक्शन क्या है, सेपरेट. उसका मतलब ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है ये सेम सिटीजन्स को गवर्न करता है. और हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट ना जो है, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अपने अपने पावर्स है. क्या किससे रिलेटेड पावर्स है? लॉ बनाने से रिलेटेड, टैक्स कलेक्ट करने से रिलेटेड, और स्टेट को या कंट्री को एडमिनिस्टर करने के रिलेटेड भी इन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अलग अलग पावर्स है ना. उसके बाद में सुपीरियरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस पॉइंट को हम और ज्यादा एलाबोरेट करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय द सुपीरियरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है ना. ये कंट्री का है, कंट्री का क्या है, सुप्रीम लॉ माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को. एज यू कैन सी हियर, existence and authority of each level of government is constitutionally governed. या हम बोलेंगे constitutionally guaranteed. superiority of the constitution means कि जो यहाँ पे existence है, जो यहाँ पे authority है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, चाहे हम सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट की बात करेंगे या स्टेट लेवल गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो इनकी जो एग्जिस्टेंस है, इनकी जो अथॉरिटी है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. सो दिस इज superiority of the constitution. Fourth feature and third feature and fourth one is the रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसको बोला जाता है लिविंग डॉक्यूमेंट. लिविंग डॉक्यूमेंट मीन्स दैट एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड, इट कैन बी मॉडिफाइड. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एट टाइम्स इट इज फ्लेक्सिबल, लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
Britain, and at times it is rigid like the Constitution of the United States of America. तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं कि it is a combination of rigidity and flexibility. Sometimes it is rigid and as is the Constitution of United States of America, and sometimes it is rigid, sometimes it is flexible as is the Constitution of Great Britain. So it is a combination of both, combination of rigidity and the flexibility. So rigid constitution यहाँ पे आप देखोगे fundamental provisions, अगर आपको फंडामेंटल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन की चेंज करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस को अगर आपने चेंज करना है तो वहां पे उनको यूनिलैटरली नहीं किया जा सकता है. आई मीन टू से वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट can't change the fundamental provisions of the constitution. तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज करना है, दे कांट बी चेंज्ड यूनिलैटरली, बल्कि वहां पे उनको चेंज किया जा सकता है बायलैटरली. वहां पे कंसेंट एंड अप्रूवल दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का होना जरूरी है. इज दैट क्लियर? तो यहां पे आप देखोगे दोनों लेवल्स का कंसेंट जाना चाहिए, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, इसीलिए इसको बोला जाता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कि वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कांट चेंज द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके लिए आपको दोनों लेवल्स का अप्रूवल एंड कंसेंट होना चाहिए. सो दिस इज फोर्थ फीचर ऑफ द फेडरलिज्म. एंड फिफ्थ वन इज सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स, कि यहां पे आप देखोगे कोर्ट्स के पास क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी है. यहां पे कोर्ट्स के पास आप देखोगे कि आपने इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है कंट्री के किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ द इंडियन जुडिशरी, एंड वट एवर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, एंड देयर इज नो कोर्ट इन द कंट्री विच कैन चैलेंज द authority which can challenge the supremacy of the Supreme Court of India. As you can see here, supreme authority of the court. Courts have the power to interpret the constitution. यहां इंडिया में कोर्ट्स के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है. एंड द हाईएस्ट कोर्ट जो है एक्ट्स एज एन एम्पायर, कि यहां पे जो हाईएस्ट कोर्ट है दैट एक्ट्स एज एन एम्पायर. ठीक है, और हाईएस्ट कोर्ट इंडिया, हाईएस्ट कोर्ट जो है कंट्री में, इट इज सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ द इंडियन जुडिशरी, एंड दैट एक्ट्स एज एन एम्पायर. अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल के बीच में डिस्प्यूट अराइज होगा, एंड दैट टाइम इट इज द जुडिशरी जो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है. ठीक है ना, एंड जो जुडिशरी के पास ही पावर ही है, जुडिशरी के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास पावर है कि अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा तो उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट जो है ना इंटरवेन कर सकता है, एंड सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है. एंड वो आपने पढ़ा भी होगा कि वो पावर सुप्रीम कोर्ट का कौन सा पावर कहलाता है, उसको बोलते हैं ऑरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है ना, आई विल बी राइटिंग इट हियर, ऑरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. ये ऑरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट पावर्स है. पहला पावर है ऑरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मुझे यहां पे इसको डिस्कस नहीं करना है. ये एप्लीड ज्यूरिसडिक्शन है, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है. दीज आर द डिफरेंट पावर्स दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एक्सरसाइजिंग. इसमें ये पावर है ऑरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस द पावर ऑफ ऑरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जब डिस्प्यूट अराइज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या कंट्री के सिटीजन्स के बीच में, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में, या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या एक साइड से देयर आर टू आर मोर देन स्टेट गवर्नमेंट्स, दूसरी साइड से भी दो या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कभी डिस्प्यूट अराइज होता है. उस टाइम सुप्रीम कोर्ट उन केस को रिजॉल्व करता है यूजिंग इट इज पावर पावर कॉल्ड एज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. सो आई एम सेइंग यहां पे सुप्रीम अथॉरिटी कोर्ट्स के पास है इंडिया में. ये फिफ्थ फीचर है फेडरलिज्म का. और अगर कभी डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा तो जो यहां पे टॉप मोस्ट कोर्ट है इंडियन जुडिशरी का, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, वो एक्ट करता है एज एन एम्पायर एंड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म. 5 फीचर्स यहां पे हमने डिस्कस किए, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है. तो इसी तरह से आप 5 पॉइंट्स लिखोगे और बाद में यू विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट.
ठीक है ना। आप इन हर एक पॉइंट को एक एक दो दो लाइन में बाद में फिर इनको इलाबरेट करोगे। सो दिस इज की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल, दिस इज द सेकंड सिक्स्थ फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। ये पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। बेटर रहेगा कि अगर आप सारे पॉइंट से इसमें ऐड करोगे, अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप का ना क्वेश्चन एग्जाम में आया। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है ना, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है वो सेपरेट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने खाली इनकी पावर्स ही प्रेस्क्राइब नहीं किया, बल्कि इन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ इनकम या हम बोलेंगे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी स्पेसिफाई किया है, ठीक है ना। व्हाई? इन ऑर्डर टू एंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इन ऑर्डर टू एंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू को भी स्पेसिफाई किया है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट क्या रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से रेवेन्यू एंड कौन से टैक्सेस कलेक्ट कर सकती है। तो व्हाई इज दिस सो? बिकॉज हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन एंजॉय व्हाट? Financial autonomy. Then we are having seventh feature of federalism is dual objectives. कि जो federalism है ना, it serves dual objectives. Twin objectives को ये serve करता है। Federalism has dual objectives to safeguard and promote यूनिटी ऑफ द कंट्री। कि ये जो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं कि फेडरलिज्म जो है ना, ये हमारे ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करती है। क्या क्या? एक तो ये सेफ गार्ड करती है, ठीक है ना, और इसके अलावा सेफ गार्ड करता है और प्लस प्रमोट करता है कंट्री की यूनिटी को, सेफ गार्ड करता है और क्या करता है? प्रमोट करता है एंड टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और रीजनल डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करता है। रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है, सेफ गार्ड करता है और प्रमोट करता है यूनिटी ऑफ द कंट्री। सो दिस इज वी कॉल इट एज द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। जो है ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स ये सर्व करते हैं जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं। सो दीज वर द 7 फीचर्स एज फार एज व्हाट फेडरलिज्म इज कंसर्न। और यहां पे आप देखोगे फेडरलिज्म की ये 7 फीचर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशंस, ठीक है ना। फेडरेशंस के 2 टाइप्स हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स चेक किए होंगे, पिछले 3, 4, 5 साल के पेपर्स आपने, बोर्ड पेपर्स आपने चेक किए होंगे, तो आपने उसमें बहुत बार एग्जामिनर ने ये वाला क्वेश्चन भी डाला है एग्जाम में। वहां पे आपने डिफरेंसेस देने हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। तो यहां पे आप देखोगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। वन इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है ना, ये हमने 1 शॉट में भी ये डिस्कस किया था। तो अब ये दोबारा हम इसको डिस्कस करेंगे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एंड उसके बाद में दूसरे वाले स्लाइड में हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करेंगे। तो एज फार एज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज कंसर्न, यहां पे इंडिपेंडेंट स्टेट जो है ना, दे आर कमिंग टुगेदर and they are coming together and they form a bigger unit, ठीक है ना। कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं दे आर कमिंग टुगेदर एंड दे फॉर्म बिगर यूनिट, सो दैट बाय पोलिंग सॉवरेनिटी, वो अपनी सॉवरेनिटी को पोल करते हैं। उसके बाद में रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए एक तो अपनी सॉवरेनिटी को ये पोल करते हैं ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उसके बाद में अपनी आइडेंटिटी को ये रिटेन करते हैं। एंड व्हाई दे आर पोलिंग देयर सॉवरेनिटी, अपनी आजादी, अपनी इंडिपेंडेंस को ये क्यों पोल करते हैं। उसके बाद में अपनी आइडेंटिटी को ये रिटेन करते हैं। एंड व्हाई दे आर डूइंग दिस इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर व्हाट सिक्योरिटी। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आपने सिंपली याद रखना है कि जहां पे इंडिपेंडेंट स्टेट जो है ना, दे इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर कमिंग टुगेदर एंड दे फॉर्म अ बिगर यूनिट, इज दैट क्लियर, एंड दे फॉर्म अ बिगर यूनिट। एंड उसके बाद में वो अपनी सॉवरेनिटी को पोल करते हैं। उसके बाद में अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए दे आर नॉट ओनली पोलिंग देयर सॉवरेनिटी बट एट द सेम टाइम दे आर रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी। एंड वी हैव सम कंट्रीज, देयर आर सम कंट्रीज जो एग्जाम्पल आप देख सकते हो जहां पे आपको कमिंग टुगेदर फेडरेशन मिलेगा। एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा एंड ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा।
मिलेगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पे इंडिपेंडेंट स्टेट जो है ना दे आर कमिंग टुगेदर, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर कमिंग टुगेदर, एंड उसके बाद में दे फॉर्म अ बिगर यूनिट और अपनी सॉवरेनिटी को पोल करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर दिस, इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। एग्जांपल अगर आपने देखी होगी जहां पे आपको कमिंग टुगेदर फेडरेशन मिलेगा, वी हैव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी हैव स्विट्जरलैंड एंड वी हैव ऑस्ट्रेलिया, जहां पे आपको कमिंग टुगेदर फेडरेशन मिलेगा। नाउ वी हैव another federation, another type of federation is the holding together federation। holding together federation में हम बात करेंगे एक लार्ज कंट्री जो है ना को डिवाइड किया जाता है, या एक लार्ज कंट्री डिसाइड करती है टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जो आपने फेडरलिज्म की डेफिनेशन पढ़ी ना, तो ये सेम है कि यहां पे आप देखोगे एक बड़ी कंट्री डिसाइड करती है कि पावर को क्या किया जाए, पावर को डिवाइड किया जाए। किसके बीच में पावर डिवाइड होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उसके बाद में फिर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में, या बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर जो है ना वो डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं हम क्या? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एंड एग्जांपल है इंडिया की, एग्जांपल है स्पेन में, आप स्पेन भी एग्जांपल आप इसमें ऐड कर सकते हो, और बेल्जियम भी एग्जांपल आप इसमें ऐड कर सकते हो। आप ये कंट्रीज याद रखोगे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहां कहां पे पाई जाती है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी एग्जाम में आ सकता है। और उसके बाद में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ये आपको इंडिया में मिलेगा, या आपको स्पेन में मिलेगा, या आपको बेल्जियम में मिलेगा, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डिवाइड करती है, जहां पे एक बड़ी कंट्री डिसाइड करती है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पावर को डिवाइड किया जाए बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। मगर होल्डिंग टुगेदर में एक ये है कि वहां पे होल्डिंग टुगेदर में आप याद रखोगे कि वहां पे सारे स्टेट्स जो है ना दे आर नॉट एंजॉयिंग इक्वल पावर्स। अब वहां पे कुछ बना स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में हमने एग्जांपल दी कि इंडिया में आपको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मिलेगा, यहां पे कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। लाइक फॉर एग्जांपल जेएंडके को अंडर आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस दिया गया था। इसी तरह से अंडर आर्टिकल 371 वी हैव सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, और उनको वहां पे अंडर आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस दिया गया है। मगर ये वाला ये जो स्पेशल स्टेटस जो है ना, ये आपको कमिंग टुगेदर फेडरेशन में वहां पे सारे स्टेट जो है ना दे आर सेम एंड नो स्टेट इज एंजॉयिंग some extra powers, some special powers। मगर होल्डिंग टुगेदर में सारे स्टेट जो है ना दे आर नॉट एंजॉयिंग द व्हाट? इक्वल पावर्स। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। इज दैट क्लियर? ये एग्जांपल यहां पे दी गया है, स्पेन का मैप यहां पे दिया गया है, एंड उसके बाद में बेल्जियम का मैप दिया गया है जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है। आपने पहले वाले चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री? कि इंडिया को कौन सा चीज बनाता है, क्या ना, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री? कौन सा चीज इंडिया को क्या बनाता है? फेडरल कंट्री। तो यहां पे आप देखोगे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसने डिक्लेयर किया है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर आप आर्टिकल 1 पढ़ोगे, ठीक है, आर्टिकल 1, आर्टिकल मैं लिखूंगा यहां पे आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इट स्टेट्स दैट इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। Article 1 of the Indian Constitution states that India shall be the union of states, and India is the union of states. There are 28 states in India, and इसके अलावा although it did not use the word federation, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, मगर वहां पे इंडिया ने वर्ड फेडरेशन यूज नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, मगर इंडियन यूनियन जो है ना इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? फेडरलिज्म। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्ड फेडरेशन यूज नहीं किया है, मगर जो हमारी इंडियन यूनियन है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? फेडरलिज्म। Is that clear? And यहाँ पे you can see here constitution originally provided for two-tier system of government। यहाँ पे पहले आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट आती है, इसमें स्टेट लेवल गवर्नमेंट आती है, उसके बाद में फिर लोकल लेवल गवर्नमेंट, 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट बाद में फिर ऐड किया गया। एंड द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे पहले भी हमने पढ़ा कि पहला टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है? इट इज सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट और यूनियन लेवल गवर्नमेंट।
रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद में पहला जो है, पहला 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पहला इज सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एंड दूसरा है स्टेट लेवल गवर्नमेंट, और तीसरा लेटर इसमें थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो ऐड किया गया इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के फॉर्म में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो भी ऐड किया गया, जिसको हम बोलते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट। उसमें म्युनिसिपैलिटीज आता है और उसमें पंचायत आते हैं। सो दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इसको थोड़ा और ज्यादा इसमें हम इसको एलाबोरेट करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 3 लिस्ट। जब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे तो वहां पे आपको 3 लिस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। पहला लिस्ट आपको मिलेगा यूनियन लिस्ट, उसके बाद में दूसरा आपको मिलेगा स्टेट लिस्ट, और तीसरा आपको मिलेगा कॉन्करेंट लिस्ट, फोर्थ वाला आपको मिलेगा रेजिडेरी पावर्स, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे हर एक टियर ऑफ गवर्नमेंट है जो है, हर एक टियर ऑफ गवर्नमेंट, चाहे हम सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट की बात करेंगे, चाहे हम स्टेट लेवल गवर्नमेंट की बात करेंगे, इनका अपना अपना जुरिस्डिक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके पावर्स प्रेस्क्राइब किए। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पावर्स को प्रेस्क्राइब किया है और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को भी प्रेस्क्राइब किया है। तो यहां पे आप देखोगे यूनियन लिस्ट इज दैट लिस्ट विच कंटेन सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इज अलाउड टू मेक लॉज। यूनियन लिस्ट की हम बात करेंगे। सो यूनियन लिस्ट कंसिस्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स on which only central government is empowered to make laws, ठीक है ना। that is called as the union list। and इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है डिफेंस जो है, डिफेंस के ऊपर लॉ लॉ बना सकता है खाली सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये आता है किसमें, यूनियन लिस्ट में। कल को आपने लिखना होगा नेम सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट, तो आप याद रखोगे यहां पे डिफेंस इसमें आता है, फॉरेन अफेयर्स आता है इसमें, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड अगर लॉ बनाना होगा खाली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। करेंसी के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट इज अलाउड टू मेक लॉज, एंड दीज आर द सब्जेक्ट्स कंटेन्ड इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। उसके बाद में स्टेट लिस्ट इज कंसिस्ट्स ऑफ दैट दो सब्जेक्ट्स on which only the state government is empowered to make laws। वो उसमें आपको स्टेट लिस्ट में आपको वो सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे जिसके ऊपर खाली स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। लाइक इसमें आप देखोगे वी हैव सब्जेक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर के ऊपर अगर लॉ बनाना होगा, या ट्रेड के ऊपर लॉ बनाना होगा, कॉमर्स, देन वी आर हैविंग इरिगेशन एंड पुलिस, या मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, तो उसके ऊपर खाली स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टेट लिस्ट। देन उसके बाद में कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आता है जिसके ऊपर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इज अलाउड टू मेक लॉ, कि इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। लाइक क्या क्या सब्जेक्ट्स में आता है, इसमें ट्रेड यूनियंस आता है, इसमें फॉरेस्ट्स आता है, इसमें एजुकेशन आता है, इसमें मेरा मैरिज के ऊपर अगर लॉ बनाना होगा वो भी कंकरेंट लिस्ट में आता है, सक्सेशन जो है ना वो भी कंकरेंट लिस्ट में ही आता है, एडॉप्शन जो है ना वो भी कंकरेंट लिस्ट में ही आता है, जिसमें इन सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। मगर अगर कभी डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, अगर कभी कंट्रोवर्सी एंड कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा बिटवीन द 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट टाइम इट इज द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्स, ठीक है। सो दीज आर द 3 लिस्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एंड इसमें फोर्थ वाला जो यहां पे आप देखोगे रेजिडरी सब्जेक्ट्स में कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, ना ही वो स्टेट लिस्ट में, ना ही कंकरेंट लिस्ट में, ना ही यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो वो उन सब्जेक्ट्स फिर जाते कहां हैं, ठीक है ना। डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द लिस्ट एंड came up after the constitution was made, and वो subjects जो ना they came after the constitution of India was framed, they came into existence after the constitution of India came into existence। तो वो ना ही वो सेंट्रल वाली कैटेगरी में आते हैं, ना ही वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट की कैटेगरी में आते हैं, ना ही वो दिस यूनियन लिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो उसके ऊपर कौन लॉ बना सकता है वो हम यहां पे देखेंगे। उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है ना ये आता है किसमें, रेजिडरी सब्जेक्ट्स में। जो तीनों पहले वाले सब्जेक्ट्स में जो हमने देखे उनमें दिस सब्जेक्ट इज मिसिंग, इज दैट क्लियर। देन ये थोड़ा और इसने एलाबोरेट किया है
दिस होल्डिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड उसके बाद में कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी जो है यहां पे डिस्कस किया है, होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। सो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दिस कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन अगेन हियर। ओके, नाउ यू कैन सी हियर वी हैव डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है ना, डिसेंट्रलाइजेशन। और एक तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, और दूसरा व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन, क्यों ना डिसेंट्रलाइजेशन क्यों की गई, ठीक है ना। तो ये हम यहां पे डिस्कस करेंगे। पहले आप याद रखोगे डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, ठीक है ना, डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन। तो यहां पे आप देखोगे फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट below that of the state government। जब हम फेडरल पावर शेयरिंग की बात करते हैं इंडिया में, तो फेडरल पावर शेयरिंग में देयर इज द नीड ऑफ अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट, जो एंड दैट अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, दैट लाइज बिलो द स्टेट लेवल गवर्नमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज द लोकल लेवल गवर्नमेंट। एज यू कैन सी हियर सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इज गिवन टू द लोकल लेवल गवर्नमेंट। जब कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से ली जाते हैं और उनको वो पावर जो है ना, दे आर बीइंग गिवन टू द लोकल लेवल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। एज यू कैन सी हियर व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से पावर्स ली जाते हैं एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल, वेरी सिंपल डेफिनेशन। और उसके बाद में क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से एंड स्टेट गवर्नमेंट से पावर्स लेना और बाद में लोकल लेवल गवर्नमेंट को देना, why there was the need to decentralize the power, why there was the need to take away to take some powers of the central government and the state government and to give them and give those powers to the local level government। इसका यहां पे आप देखोगे कि जो बेसिक आइडिया जो था बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्यों डिसेंट्रलाइजेशन की गई, क्यों पावर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से लिए गए और बाद में लोकल लेवल गवर्नमेंट को वो दिए गए। तो इसका बेसिक आइडिया डिसेंट्रलाइजेशन का ये था कि दैट देयर आर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको बेस्ट रिजॉल्व किया जा सकता है, बेस्ट सेटल किया जा सकता है एट द लोकल लेवल। आर यू गेटिंग मी? मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट आप याद रखोगे ना, व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन और व्हाई देयर वाज द नीड टू डिसेंट्रलाइज द पावर। तो यहां पे आप याद रखोगे कि बेसिक आइडिया ये था कि डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे कि कुछ ऐसे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज जिनको बेस्ट रिजॉल्व किया जा सकता है एट द लोकल लेवल गवर्नमेंट, एट द लोकल लेवल। तो दैट्स व्हाई दिस इज वन रीजन कि क्यों डिसेंट्रलाइजेशन की गई। सेकंड ये है कि as people have better knowledge of problems in their localities, कि लोगों को अपने localities में they are having better knowledge of their problems। so this was सारा जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट ही अगर ये होती या खाली स्टेट लेवल गवर्नमेंट ही होती, तो जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं वहां पे उनको प्रॉब्लम्स को कोई जो है उनके प्रॉब्लम्स को कोई वहां पे देखता ही नहीं, उनके ग्रीवेंसेस को कोई वहां पे रिड्रेस ही नहीं करता। तो यहां पे आप देखोगे अनदर रीजन व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन में कि पीपल जो है दे आर हैविंग बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। एंड थर्ड इज उनको बेटर आइडियाज हैं कहां पे पैसा स्पेंड करना है एंड इसके अलावा और थिंग्स को कैसे एफिशिएंटली मैनेज करना है, ठीक है। ये थर्ड रीजन है कि एक तो उनको बेटर आइडियाज हैं कि हमें पैसा कहां पे स्पेंड करना है, ठीक है। और इतना ही नहीं कि दैट दे आर हैविंग बेटर आइडियाज वेयर दे हैव टू स्पेंड द मनी, बल्कि इसके अलावा उनको ये भी उनको नॉलेज है कि हमें थिंग्स को कैसे मोर एफिशिएंटली जो है ना मैनेज करना है। एंड इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। और यहां पे लोकल लेवल गवर्नमेंट जो ये क्रिएट की गई ना, तो लोगों के पास ये पॉसिबल है कि लोग जो है ना वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अगर दो ही लेवल्स होते तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए की गई क्योंकि लोग जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। एंड इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है
बेस्ट वे टू realize one important principle of democracy. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना, ये एक बेस्ट वे है रियलाइज करना किस चीज को, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, डेमोक्रेसी. सो these are reasons, 5 reasons we have discussed कि क्यों डिसेंट्रलाइजेशन की गई, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से पावर्स स्नैच किए गए, पावर्स लिए गए और बाद में उन पावर्स को लोकल लेवल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया. सो दिस इज व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड उसके बाद में व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है ना, दोनों ये इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड why was there need to decentralize the power. Is that clear? Now उसके बाद में we have another one here. It is the need for decentralization was recognized in the constitution. कि ये जो decentralization की जो need है ना, ये constitution ने recognize किया. ठीक है ना, इट इज नॉट कि किसी एक इंडिविजुअल ने, किसी एक पर्सन ने, ना ही प्राइम मिनिस्टर ने, ना ही प्रेसिडेंट ने, ना ही किसी एक पर्सन ने इस नीड को रिकॉग्नाइज नहीं किया, बल्कि दिस द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एज यू कैन सी हियर, तमाम स्टेट्स में आपको मिलेगा, और क्या मिलेगा, पंचायत मिलेंगे, विलेजेस में. ठीक है ना, ये हम लोकल लेवल गवर्नमेंट की बात करते हैं. और इसके अलावा आपको क्या मिलेंगे, म्युनिसिपैलिटीज आपको मिलेंगे अर्बन एरियाज में. अर्बन एरियाज में यू विल फाइंड द म्युनिसिपैलिटीज एंड इसके अलावा आपको रूरल एरियाज में यू विल फाइंड द पंचायत. ठीक है, एंड इलेक्शन इज to these local government were not held regularly. इनके elections regularly नहीं हुआ करते थे. Local level government, whether we talk about the panchayats, whether we talk about the municipalities, इनके elections जो है ना वो regularly नहीं होते थे. एंड इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट नो पावर और नो रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन. एक तो इलेक्शन लगा ना रेगुलरली नहीं होते थे, और प्लस इनको एक प्रॉब्लम थी, ना ही इनको कोई पावर था और ना ही इनके पास अदर सोर्सेज ऑफ इनकम थे. वो भी यहाँ पे इनको स्पेसिफाई नहीं किया गया था. दस देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स. और अगर आप देखोगे वहां पे क्या था, लिटिल, अगर हम देखेंगे प्रैक्टिकली एट द ग्राउंड लेवल डिसेंट्रलाइजेशन हुई, डिसेंट्रलाइजेशन को किया गया, मगर प्रैक्टिकली आप देखोगे ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि ना ही इलेक्शंस होते थे, ना ही इनके सोर्सेज ऑफ इनकम को स्पेसिफाई किया गया था. Is that clear? And that is why आप देखोगे कि डिसेंट्रलाइजेशन was there, but practically आप देखोगे ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था. बात समझ में आ रही है? और इसको इफेक्ट बनाने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या किया गया है, एज यू कैन सी हियर इन द नेक्स्ट स्लाइड, ए मेजर स्टेप taken towards decentralization in 1992. Very important point here कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है ना प्रैक्टिकली आप देखोगे ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी. तो एक मेजर स्टेप लिया गया टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन एंड इट वाज टेकन इन द ईयर 1992. और क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की गई, जिनको बोला जाता है 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट की गई टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की गई, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की गई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड क्यों किया गया, इन ऑर्डर टू मेक डिसेंट्रलाइजेशन मोर एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव. क्योंकि पहले ही हमने बोला कि ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, डिसेंट्रलाइजेशन की गई मगर ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा और अमेंडमेंट्स की गई 73rd एंड 74 ताकि डिसेंट्रलाइजेशन को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए और ज्यादा पावरफुल बनाया जाए. और क्या किया गया फिर जब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की गई, फिर हुआ क्या, कौन कौन से चेंजेस लाए गई. नंबर 1 कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मैंडेटरी बनाया. नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी. क्या मैंडेटरी है कि अब इनके इलेक्शंस लोकल गवर्निंग बॉडीज के जो इलेक्शंस हैं पहले ये रेगुलरली नहीं हुआ करते थे, अब इनके जो इलेक्शंस हैं अब रेगुलरली जो है ना दे विल बी हेल्ड नाउ. सो दिस वाज वन चेंज. एंड इसके अलावा सीट्स रिजर्व रखी गई, कहां पे इन इलेक्टेड बॉडीज में सीट्स रिजर्व रखी गई.
ना एससीज के लिए, उसके बाद में एसटीज के लिए, एंड देन वी आर हैविंग ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व रखी गई। कहां पे कहां पे सीट्स रिजर्व रखी गई? आप देखोगे इलेक्टेड बॉडीज में, एंड इसके अलावा एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस में आप देखोगे कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द एससीज, एसटीज एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रखी गई। एंड दिस वाज द second step that was taken in the country by the 73rd and 74th amendment जो कॉन्स्टिट्यूशन में की गई। इतना ही नहीं बल्कि एटलीस्ट 1/3 सीट्स को रिजर्व रखा गया फॉर विमेन के लिए, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस वर रिजर्व्ड फॉर विमेन के लिए भी रिजर्वेशन रखी गई, 1/3 रिजर्वेशन रखी गई इन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसको बोला जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है स्टेट लेवल पे इलेक्शंस को कंडक्ट करना। लाइक जिस तरह से कंट्री में वी आर हैविंग election commission, and the head of the election commission is the chief election commissioner of India, who is being appointed by the president of India for the period of 5 years. उसका काम क्या है? To conduct the elections in the country in a free and fair manner. इसी तरह से इस 73rd and 74th amendment के जरिए क्या किया गया? एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन, और स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्रिएट किया गया हर एक स्टेट में क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन के स्टेट लेवल में, स्टेट्स में पंचायत इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, एंड उसके बाद में म्युनिसिपल इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए इस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट इलेक्शन कमीशन। इज दैट क्लियर? देन वी आर हैविंग द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया कि आपको क्या करना है? आपको कुछ अपने पावर्स और इसके अलावा अपने रेवेन्यू शेयर करना है किसके साथ? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ, इन्हीं पंचायत के साथ, म्युनिसिपैलिटीज के साथ। आप अपने पावर्स उनके साथ, आई मीन टू से कुछ अपने पावर्स आप उनको दोगे, और जो पहले पावर्स स्टेट गवर्नमेंट ही एंजॉय करती थी या इसके अलावा सारे रेवेन्यूज ना खुद ही कलेक्ट करती थी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको प्रेस्क्राइब किया था। अब स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया कि आपको अपने पावर्स और अपना रेवेन्यू शेयर करना है इन लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, आई मीन टू से पंचायत के साथ और म्युनिसिपैलिटीज के साथ। द नेचर ऑफ पावर शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, मगर जो नेचर है पावर शेयरिंग का, इट वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इज दैट क्लियर? तो इट इज नॉट सेम एवरीवेयर, ओके, इट इज नॉट सेम एवरीवेयर, इट वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। आई एम टॉकिंग अबाउट शेयरिंग ऑफ पावर जो है ना, ये वेरी करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सो these were the different steps that were taken in the year 1992. Why they were taken? They were taken towards decentralization. या हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन जो था इसको इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है ना, मगर प्रैक्टिकली ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। तो इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए एक मेजर स्टेप लिया गया टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, दैट वाज टेकन इन द ईयर 1992. So these were the different expected questions related to this chapter फेडरलिज्म। इंशाल्लाह जो एग्जाम में जो पेपर आएगा वो इन्हीं क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहां पे डिस्कस किए, 90-95% चांसेस है कि एग्जामिनर यही क्वेश्चंस एग्जाम में दे सकता है इंशाल्लाह। इज दैट क्लियर? तो ये था आज के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ORCC सेशन में आपके साथ मैं किसी दूसरे चैप्टर को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, किसी दूसरे चैप्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।